Congratulations, Chitwan. How are Thank you? you so much, ma'am. Fine. Thank you. So, how are you feeling after getting selected? Feeling very nice, but yeah, it's a mixed bag of emotions. I'm processing it right now. So, I think success is something which should be processed quickly because you were working hard for it. Yeah, for sure. इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे थे. बिल्कुल. अच्छा बताओ, सबसे पहले आई एम रियली हैप्पी कि फिलोसफी से आपका सिलेक्शन हुआ बिकॉज फिलोसफी इज वन सब्जेक्ट विच आई फील इज नॉट जस्ट गुड फॉर यूपीएससी बट येस इट इज गुड फॉर Life per se. लाइफ पर से. इट हेल्प्स यू decode yourself, decode the surroundings. आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सॉर्टेड है थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ने के हाँ बाद. जी. तो यू वर फाउंडेशन बैच स्टूडेंट, हमारा फिलोसफी की आपने क्लासेस करी. क्या क्या आपको रियलाइज हुआ जब आपने फिलोसफी पढ़ी? Yeah, I've made a right choice. Optional अच्छा choose किया. तो मतलब उसके बाद मैंने I was trying to see other optional also, but once I started classes, I hooked on to it, and yeah, it served me well. लाइफ में कैसे हेल्प करी उसने? कुछ प्रिपरेशन में हेल्प करी? For sure. Marks अभी तो आए नहीं, but I think आएंगे उसमें नंबर अच्छे. And also preparations में भी हाँ मतलब when we read philosophy, you get to know ideas. You see per se. You read, for example, the pluralism or the Vedanta. It will have it helped me in preparation also and in general in life also. For example, like after results, I was telling you right now that I was also trying to mug up the philosophy of Advait only. That yeah, okay, to calm myself down. So it did help me in preparation, in academics too, and out of it too. सो क्लासेस से क्या आपको फायदा हुआ? कोई मतलब क्लासेस में समझ आया, कैसा रहा? मतलब it helped build my foundation. I didn't attend any other classes per se. I only took these classes only. So it helped me build upon the concepts and say answer writing techniques, what have to be done, how it is to be done, how to understand a question, and also what to read and what not to read. Why and where no, we should not hover where. For example, the space and time concept we were talking about, we read in classes. You particularly said to not go into that because this is where philosophers and thinkers right now also debate on it. So it is very important in philosophy to know where to stop. So that was also one of the thing where classes did help. And what about your own preparation? So when you were preparing, what was your mindset? What helped? So why are we doing this? We just want to understand what helped in the preparation, because there are a lot of people, there are a lot of students who would want to understand what helped. I don't have any say glittery story for it. Because one thing I'd like to add is to be consistent is the key. Yes. I was studying since last say it is not 1 year I've studied for more than 2 years now. And consistency is the key. You don't have to be so romanticized about struggle and failing, or say it's not always if you I'm not able to put it in words right now, but what I want to say is that कि हो जाता है करने से, इतनी बड़ी बात भी नहीं है. हाँ, करने से हो जाता है, अगर मेहनत करी जाए तो हो जाता है. होता है. क्योंकि I cannot share even one say struggling story कि मैं ऐसा करता था फिर ऐसा हो गया था. जरूरी भी नहीं है ना, हर बार कोई स्ट्रगल की स्टोरी होती भी नहीं True है. thing. मेहनत की स्टोरी होती है कि भाई हाँ ठीक है, मेहनत करी थी, एफर्ट डाला था, हो गया. You have to be consistent. That is the non-negotiable. Anything in life, for example, not just UPSC, consistency is the key. So जब फिलोसफी आप पढ़ रहे थे तो कैसे, what was the go-to strategy? So you were reading, then you were writing. कैसे करते थे? मतलब you were like कि अब सिर्फ नोट्स पढ़ लिए तो हो गया, या नोट्स के बाद बुक्स पढ़ी, खुद अपने नोट्स बनाए, तब आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी, क्या कैसे किया? वही जो अपना क्लास में था, मतलब क्लास लेता था मैं रनिंग नोट्स नहीं लेता था क्योंकि नोट्स होते थे अपने पास ऑलरेडी. जहाँ रनिंग नोट्स होते थे वहाँ पर वही जो आप डिक्टेट करते थे तो उनसे पढ़ता था मैं. और उसके अलावा मैंने तो पर्टिकुलरली कोई और बुक रीड नहीं की, कोई भी मतलब से अकेडमी बुक या क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी फिलोसफी नहीं था.
तो वही जो नोट्स थे मैंने वही पढ़े जो हमारे वाले नोट्स थे प्रिंटेड बस वही पढ़े बस। हाँ, और कुछ नहीं? नहीं कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की लफड़े में नहीं? स्टैंडर्ड बुक्स तो मैंने बिल्कुल भी मतलब कोई भी नहीं है मेरे पास फिलोसफी मैं की वैसे स्टैंडर्ड खरीदवाती बुक्स। भी नहीं हूँ। हाँ, वही नोट्स थे और शायद एक दो कोई और नोट्स देखे होंगे मैंने जब मैं मेंस के पास आ रहा था। थोड़ा सा बस तो हाँ, explore, मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं थी। ओके। एंड राइटिंग प्रैक्टिस? खुद ही करता था, मतलब वही क्लास में क्वेश्चंस होते थे वो लिख लेता था। वो तो हम राइटिंग प्रैक्टिस जो करते बस हैं वही वही। वही ओके। तो जैसे जब आप लिखते थे सो यू वर एबल टू गेट द आइडिया कि यस यू नो Yeah. आई एम राइटिंग गुड? हाँ, I used to write answers which were already written by say toppers. I suppose जो पुराने टॉपर्स उनकी कॉपीज हैं उनके जो क्वेश्चंस है मैं वही लिखता था जिससे आई हैव समथिंग टू मैच टू और रेफरेंस पॉइंट होता मेरे पास जिससे तो उससे एक्चुअली समझ में आ जाता है। मतलब इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ आप जज कर सकते हो खुद को कि वेयर आर यू राइट, वेयर आर यू लैकिंग, क्या क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए। तभी मैं उस दिन फोन पे देख रही थी तो कुछ कॉपीज मेरे पास भी आई हुई थी जब हम लोग शायद मेंस की मेंटोरशिप की प्रिपरेशन कर रहे थे तब की कुछ कॉपीज आई हुई थी। तो मुझे सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करी कि राइटिंग बहुत अच्छी है राइटिंग अच्छी है, फ्लो अच्छा है। क्योंकि अब तब तो चेक करते हैं लेकिन अब when you see the result then you go back and see कि how it worked। तो आपको ऐसा लगा कि consistency works for sure, and anything else? not hovering around, be honest to your resources क्योंकि there are plenty of resources, just have to pick. I'm not saying that you don't read any reference book, but if you read and you get idea that this is not required for me, just don't do it for the sake of doing it, because philosophy is an optional. Obviously as a subject कितनी भी बुक्स पढ़ लो philosophy you won't be satiated by that, but as an optional एक limited periphery है। PYQs भी देखेंगे तो उन्हीं के आसपास आते हैं, उन्हीं के आसपास वेदांत में माया है, ब्रह्म है, या फिर कांट में इम्पेरेटिव्स हैं और वही नॉमिना फिनोमिना एंटीमोनीज वगैरह। जैसे एंटीमोनीज पे क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो मैंने उसका एक सारा सोर्स देखा था क्योंकि मेरे को लगता था कि हो सकता है मैं थोड़ा बेटर प्रेजेंट कर सकूं क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, तो इसलिए। बट रेफरेंस बुक मैंने तब भी नहीं ली, बट हाँ यू कैन रीड एनीथिंग यू वांट बट ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज क्योंकि एज एन ऑप्शनल इतना नहीं मांगता फिलोसफी, तो यू कैन बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। क्या क्या आपको लगा कि यू नो व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग फिलोसफी एज एन ऑप्शनल? जल्दी खत्म हो गया था वन थिंग फॉर श्योर, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मेरे को नोट्स मिल गए थे तो मैंने ज़्यादा नहीं किया था, इजीली मिल जाएंगे मतलब वही। उसके बाद इट हेल्प्स इन लाइफ फॉर श्योर। सबसे ज़्यादा हेल्प कौन सी करी फिलोसफी? इट्स टफ टू चूज वन नाउ दैट आई हैव स्टडीड फ्यू। हर फिलोसफी में कुछ ऐसा है जो मेरे को हेल्प करा और अभी तक अगर नहीं भी करा होगा तो आगे तो पक्का करेगा। मतलब इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू एंड बी ऑफ एनी यूज। यस, in ways I don't even recognize that हाँ यहाँ पे इस फिलोसफी ने मेरी हेल्प करी, बट हो सकता है वो कर रही हो। मेरे को तो आज तक हेल्प कर रहा है। आज तक कभी लाइफ में कोई चीज़ें होती हैं, आई स्टिल गो बैक, वेदांत, जैनिज्म, सांख्य, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रिलेट होती है एंड यू कम बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर आवर मेंटल हेल्थ, for our life, for our relationships, for existence itself, philosophy is one subject which is superb, थोड़ा जैसे कहते हैं अंडर रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि लोग साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ हुआ तो लाइफ में साइकोलॉजी विल हेल्प, बट अंडरलाइन एवरी अदर सब्जेक्ट आई थिंक देयर इज फिलोसफी। फिलोसफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। Great. I'm really happy that you made it and you made it so good. Thank you so much. And as a teacher, I'm really proud and I'm really happy. Thank you so much. Best wishes for your future. Thank you so much.